There's something John Danaher talks about this isometric strength or old man strength. कॉर्नर मैग्रेगर शॉन ओमेली को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए देखते हो एंड आई कैच हिम अबाउट So hello Shradhey sir. So Shradhey sir, can you give a little background about how you started jiu-jitsu and a sneak peek into your journey? Okay. Well, I started jiu-jitsu in August 2016. So it's been 7 years. 7 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ BJJ में. I started by coincidence. That time, my neighbor used to train in BJJ, so I just saw his gi and saw him going to train. तो मैंने कहा ये क्या भी उस neighbor के कारण मैंने try किया. I did one trial class and then I was hooked to BJJ. What would you recommend people your age, around your age, if they are not training jiu-jitsu? What do you think they are missing out on? And मैंने start किया when I was 38. So most people would say that was a late start. और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, I feel like you can modify training according to your age. So generally, I wouldn't be that fast. You can take more rest in between rounds. You don't have to go hard all the time. तो BJJ पे तो इतना options हैं variation के कि आपको इतना ज़्यादा exert करने की ज़रूरत नहीं है. Starting you start slow. और एक दूसरी चीज़ मैंने ये देखा है कि I can go against young people if they are not as technical as me. Because I can use my techniques to deal with their speed, their strength, because I'm more efficient. I know what's going to happen or I can predict what's going to happen. So I don't have to be fast, I don't have to use that much energy. So अगर आपकी एज ज़्यादा है तो you become technical, work on your techniques, learn defense, develop your game accordingly. But I think, I can't remember who said that, maybe it was Roger Gracie or Horace Gracie or one of the Gracie said, the best time to start BJJ is when you are 4-year-old and now. तो अगर आपने 5 years पे start नहीं किया है तो second option है आज की डेट में कल ही आप जिम ज्वाइन करो. so any message that you would like to give to our viewers or people who don't train combat sports or jiu-jitsu? So your life is more important than anything else. So don't take a risk. Don't take a chance on a cheap gym or because of lower fees or because of convenience. तो जहाँ पे भी हो, आप बड़े शहर में हो, आप जयपुर में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अच्छे जिम सब खुल रहे हैं MMA के, या सिर्फ ग्रैपलिंग के हो तो वहाँ जाके आप ट्रेन करिए. So I'm about to do B-rolling along with Shradhey sir. I'll try to learn something. The last time I guess I did B was along with Rahul Gandhi. So if you want to know more about that, go to Magicman podcast. Shout out to Magicman. वहाँ पे आपको मिल जाएगी वो डिटेल्स. राहुल गांधी डेज. सो लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था आपका ओपोनेंट अपना लीड लेग आपके लेग के बाहर लेके जाना चाहता है एंड देन ही वांट्स टू हिट यू ताकि उसका स्ट्रेट हैंड आपकी सेंटर लाइन में है एंड अब आप काउंटर नहीं कर सकते बिकॉज वो काफ़ी बाहर निकल चुका है, इसका लीड लेग जीत चुका है. उस केस में इट इज़ वेरी गुड अगर आप एब्जॉर्प्शन स्टेप या पेंडुलम स्टेप इसमें यूज़ करते हो, जो आप कॉर्नर मैग्रेगर शॉन ओमेली को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए देखते हो. सो कृष्णा जैसे अपना लेग बाहर लेता है एब्जॉर्ब, तो अब हम दोनों के वापस से राइट शोल्डर उसके लेफ्ट शोल्डर से मिलता है, लेफ्ट उसके राइट से मिलता है, और अब मैं उसके स्ट्रेट हैंड के ऊपर से अपना काउंटर शॉट मार सकता हूँ एट द सेम टाइम. सो मे बी कृष्णा अपना कोई भी फेंट यूज करता है सबसे पहले लेग बाहर निकालने के लिए और स्ट्रेट हैंड मारना चाहता है, तो पहला शॉट मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ताकि रेंज हमेशा बराबर है एंड इमीडिएटली आई यूज माई पेंडुलम स्टेप ऑफ मूविंग बैक, और अब इसकी वजह से मैं इसके स्ट्रेट शॉट के ऊपर से काउंटर कर पाऊंगा. सो ही कम्स इन मूव एंड आई कैच हिम. सो हमेशा आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि MMA है तो आप इस हाथ को आराम से नीचे दबा भी सकते हो, आप ऊपर से जा सकते हो. ये सेम चीज़ आपने कॉर्नर को करते हुए देखा है एडी एल्वेरास और होजे ऑल्डो पे,
एंड इस बार आप लोगों ने शुगर शॉन को देखा था जब उसने ये फ्रंट किक मारा था, और अपोनेंट जनरली फ्रंट किक को काउंटर लेफ्ट हैंड से करने के लिए अंदर घुसते हैं। तो उसने फ्रंट किक मारा एंड ये कैच किया उसने इमीडिएटली मूव करके, फ्रंट किक एंड कैच। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू पीपल कैन डू। सेकंड पार्ट आता है वापस से वो स्ट्रेट लेफ्ट है, इस बार मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करूंगा बल्कि मैं अपनी जगह से ज्यादा पीछे नहीं हटूंगा। सो मैं वहीं पे रहूंगा एंड मैं उस शॉट को मिस करूंगा बाय स्लिपिंग इट। ओके, इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज यू ऑल हैव सीन दीज लियोन एडवर्ड्स काइंड ऑफ थिंग, जब ये हैंड आ रहा है आप स्लिप करते हो और वही किक आ जाता है। तो इसमें थोड़ा ऑब्वियसली रिस्क पड़ता है, बट आप इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो बाय गेटिंग क्लोज टू अ पर्सन। सो मैं इस शॉट को कभी भी इतना दूर से मिस नहीं, बट अगर ये पास आ रहा है तो मैं स्लिप कर सकता हूँ एंड यहाँ से आई गेट गुड काउंटर्स। आई कैन गो जनरली बॉडी या इनसाइड अपरकट। ये वन ऑफ द बेस्ट है बिकॉज ये शॉर्ट रेंज है। और अगर सिर्फ ये बॉक्सिंग मैच होता तब इट इज एडवाइजेबल क्योंकि हेड किक का इतना डर नहीं है, तब स्ट्रेट शॉट भी जा सकते हो, बूम एंड आई गो अप हाथ के ऊपर से। ओके, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू पीपल कैन डू जिसमें आप सेफ रहते हो इज गेट इन क्लोज रेंज, ताकि एडवर्ड्स किक जो है, एडवर्ड्स किक मैं बोल रहा हूँ, बाकी बहुत लोग मारते थे उसको पहले भी, तो वो आप उसको मिस कर सको। सो ये क्लोज रेंज, बूम एंड फॉलो अप विद द हुक पोस्ट दैट, सो दैट्स गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस। सो यशस्वी कम्स बूम एंड मैं इनसाइड जाता हूँ, ठीक है, एंड फॉर गुड मेजर्स मैं पोस्ट दैट एक हुक ऐड करूंगा, इट्स गोइंग टू लुक लाइक बूम। थोड़ा सा पुराने सेशन पे चलते हैं और एक रिएक्टिव काउंटर लेते हैं इस बंदे के जैब पे, एंड फिर इससे हमने जो आज किया है वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगा सिचुएशन में। सपोज मेरा अपोनेंट साउथपो से बहुत ज्यादा जैब्स यूज कर रहा है, सो अब मैं थोड़ा सा इधर मूव करूंगा, ओके, एंड वो इस तरफ मूव कर रहा है, एंड एक राइट टाइमिंग पे जब वो स्टेप कर रहा है, क्योंकि उसको मेरे साथ मेरी एडजस्ट करना पड़ रहा है, मैं एकदम से अपने स्टेप को बाहर रख के उसकी बॉडी पे एक शॉट लूंगा, राइट शॉट। तो ये भी एक काउंटर होता है व्हेन दे आर ट्राइंग टू स्टेप आउटसाइड। ओके, सो ये मैंने टच किया अंदर जाते हुए। सो मैंने अपने लेग को बाहर रखा, वो जैब लेके आ रहा था, मैं अंदर जाता हूँ, एंड अब आई कैन गो लाइक माइकल बिस्पिंग ऑन रॉक होल्ड, एक लेफ्ट हुक पोस्ट दैट, क्योंकि मैं उसके हाथ के बाहर हूँ। रिमेंबर व्हेन आई एम थ्रोइंग माय राइट हैंड, हाथ एक्सटेंड करना, तो मैं पूरा अंदर चला जाता हूँ, सो दैट अब उधर से उस लेफ्ट हुक का मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो आई कैन throw at him उस सिचुएशन में। ओके, सो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस, आई मूव, ही इज मूविंग, बूम एंड आई टच हिम उस केस में। सो मैं अपने हेड को बाहर लेते हुए आई गेट इन, मैं राइट लेग को भी फॉलो अप लेना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपका लेफ्ट हुक काम का नहीं रहेगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक देयर इज नो पावर इनटू दैट। सो आई टच, बूम। सो लास्ट वन फॉर द डे, एंड ऐसे मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं, बट दीज आर सर्टेन जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और लगेंगे किसी फाइट में। So we'll go to the Peter Yan thing, which is the long guard. So मेरा ओपोनेंट सेम फेंट्स यूज करके बाहर जाता है और लेफ्ट हैंड मुंह पे आता है, और इसको मैं लॉन्ग गार्ड से ब्लॉक करता हूँ। तो मतलब इस बार मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं वहां रुक रहा हूँ। सपोज आई एम वेरी स्मॉल और मेरा ओपोनेंट बहुत लॉन्ग है, जैसे शॉन ओमैली था या सैन हिगिन था, तो आप ऐसे आदमियों को आपको पीछे जाओगे तो आप टच नहीं कर पाओगे क्योंकि उनकी रेंज ज्यादा है। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक सर्टेन पावर ऑन योर हेड, और आप लॉन्ग गार्ड से काफी शॉट्स रोक सकते हो उस केस में। सो सौरभ आता है, बूम, आई ब्लॉक। अब बंदा मेरी रेंज में है और जो हाथ उसने ओपन किया उस सेम हाथ पे मैं अपना वही सेम वाला हाथ जिससे मैंने ब्लॉक किया उस शॉट को मैं ऊपर दूंगा इन दैट केस, एंड दैट्स गोइंग टू बी द काउंटर। सो अच्छा है वो हाथ रखना ऊपर। ओके, सो ही कम्स, मैं इमीडिएटली इस हाथ से इसको काउंटर करना चाहता हूँ, एंड उसने इससे आई गेस शॉन ओमैली को ड्रॉप किया था नीचे using this. So it's going to look like Yara sort of aggressively, boom, boom, and I connect immediately. So absorb and go for it. Okay, absorb and go for it, and you can follow up बाद में, like ये पार दिया तो दूसरा पार भी आप land कर सकते हो। So he comes, boom, 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 in that case. So that's how it's going to work.
down, let's say I reach this position, and now from here Girish will start to post his hand. Okay, this will allow him to now build up height, hip heist, and now start to escape, where I'll have to put him down on the mat once again. Okay, so whenever we are in this position, guys, what I want to do is immediately start to control his hand. So as he posts the hand on the mat, I will take my left hand and I'll start to slide my hand towards his wrist. Now I'll pull his hand into me, I'll take my right hand inside and I'll go get a Dagestani cuff. From here, I will tripod, I can start walking around and go for actual pins. Another problem that you'll face here is people having double hand posts like this, okay? Because once they can get the double hand post, they can start scooting themselves towards the wall. Now they'll have another point where they can build their base from. So if I see that they have both hand posted on the mat, again I do the same thing. I get a tight waist with one hand, I go, reach and start to place his hand here. Now I will shift his weight a little bit to the opposite side. That allows me to slide this hand in. As I slide that hand in, now I'll take my hand here, I'll shift my head and I'll start to pass and pin him once again. Okay. One final thing which I would like to mention here is the tilting action which we need to get good at. So if he has just one hand post to the side, sometimes if you just reach here, that allows his hip to immediately heist. There, come back. So what I first want to do is break him down to his elbow. So I use my head at the shoulder, I lift my leg on the opposite side, and now I'll start to lift and turn him to the other side. Now he's forced to base on his elbow, don't get broken down immediately, yeah, here. And now it's easier for me to start pinning his hand and going for the breakdown on the shoulder, okay? So this is the same tilting action which will be useful against the cage as well. So I see a lot of people when they reach here, they start to post the hand. Now if you try to reach for the hand directly, yes, you can sometimes get it and start to pull him down, but most of the time what you are doing is you are allowing his hips to get free. So he immediately builds up and now you are playing a losing battle. So what Khabib likes to do here is he immediately controls this leg, the bottom leg, because the hand post and this leg is the important one, because this is the leg which will be heisting. So he goes elbow deep. Now when Girish tries to hip heist, he cannot actually complete the hip heist. And now I can start to again tripod up, start to swing, take him down towards the mat on the opposite side. From here, I can start to collect this leg, force some sort of half guard so that he can't hip heist again. Okay? And now I can start to hit him. So I was just telling these guys कि इंडिया में पहला ही लुक कब लगा था. I'm not sure, मैं ऐसे क्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ इंडिया में पहली बार लगा था, but I guess 2010 में we were doing jiu-jitsu, तो we people were trying he looks लगाना, and let's see if that was even close to he look before Danaher. even before John Danaher, because I used to watch Bas Rutten और मैंने ब्रॉक लेसनर वगैरह का एक वीडियो देखा था जिसमें फ्रैंक मिर was winning और एकदम ब्रॉक लेसनर was winning and एकदम से फ्रैंक मिर ही टर्न इनटू हिज लेग्स काइंड ऑफ लाइक के गार्ड और उसको फिर नी बार में टैप किया था. तो ऐसा एक सेटअप मेरे दिमाग में था, तो 2010 में अब क्या पता था क्या कर रहे हैं. सो आई स्टार्टेड विद दैट. हम लोगों ने एरिया बना रखा था जहाँ पे हम डेली बेसमेंट में नो मैट्स, साइड में जिम मशीन से किसी का भी सर कभी भी लग सकता है, बट कर रहे थे इस चीज़. सो यहाँ पे स्नैप डाउन चालू होता है, आई हैव हिम इन हेडलॉक और यहाँ में गया गिलेटिन के बंदे ने उठा दिया. अब वो मैं नीचे कभी भी पटक सकता है एंड इट कुड बी वेरी डेंजरस है, पर ठीक है. अब यहाँ गार्ड रिटेंशन चालू है. उस टाइम पे नेचुरल रिएक्शन उस बंदे का है कि वो मुझे क्रेडल में पकड़ेगा एंड मैं गार्ड रिटेन करना चाह रहा हूँ somehow, but I don't know how, because मैं क्रेडल में स्टक हुई इस जगह पे. अब हम ये भी बात कर रहे हैं, मतलब मैं अपने लिए बहाना बना रहा हूँ कि तेरे सर पे लग सकती है काइंड ऑफ, लेट्स चेंज द पोजीशन. एंड सी अब मेरे को लेग राइट करने के लिए वो आ रहा है एंड यहाँ पे मुझे वापस गिलेटिन मिलता है. लुक एट माय फेशियल रिएक्शंस नाउ. अब मैं माउंटेड गिलेटिन लगा. ये भी मतलब अब एल्बो एस्केप देखो तुम. अरे नाइस, दैट्स हाउ इट इज.
ये मार्सेलो टीम से पहले है या फिर? आई थिंक मार्सेलो टीम लग गया था तब तक तो। मार्सेलो बहुत गार्सिया बहुत पुराना है। अब नाउ वॉच दिस ब्रॉक लेसनर एंट्री के गार्ड टाइप। मैं इसके दोनों एक लेग को अपने दो लेग के बीच में लेता हूं एंड आई टर्न इट नाइस। एंड यहाँ पे तुम्हें पॉप का साउंड मिलेगा। ऑल्दो उसका नी लाइन फ्री था और मुझे हील पकड़ना नहीं आता था। ये गया उसका। ये उसका नहीं गया। मतलब फिर क्या सर्जरी वर्जरी करेंगे? नहीं नहीं कुछ टाइम बाद हील हो गया था। पर ये आपको पता थोड़ी होगा कि एसीएल वैसे नहीं उस वक्त तो कुछ आइडिया ही नहीं था भाई ये सब क्या होता है। बस लगे यूएफसी सीखनी है। यूएफसी सीखनी है, एमएमए नहीं सीखना, यूएफसी सीखनी है। फिर है ना एक और था ऐसा ही वीडियो, इसमें तुम देख सकते हो टू होल्ड इंडिया का पैर टू होल्ड कब लगा था। लेट्स सी दैट। तो ये भी बेसमेंट में एक और फाइट होती है। अच्छा ये नहीं वाला ये पहले ऐसे मैट होते थे। दरिया गरीबी के दिन से भाई। ओह नाइस। वही ब्रॉक लेसनर एंट्री, वो मेरी फेवरेट एंट्री थी। फ्रैंक मेरा एंट्री ऑन ब्रॉक लेसनर। ओह आशी ग्रामी भाई, लुक एट दैट नी बार। और नी बार नहीं लगा तो मैं अब टू होल्ड के लिए चाह रहा हूं। आई हैव नो आईडिया ये काम फुल गुस्से में फेशियल रिएक्शन। वो भी कोशिश कर रहा है। अब लेग एंट्री टू गार्ड पासिंग, यू कैन सी दैट। यहाँ पे होता है टोरिएंडो गार्ड पास देखना तुम्हें, जस्ट वॉच द फुटबॉल। व्हाई एम आई गुड विद टोरिएंडो, दिस इज द रीजन।